अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में चलते हैं ख्वाजा सराओं के यहाँ। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल न चाहेगा मगर आग पे चलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। क्या जावा बिस्मिल्लाह भाई। किस कदर बेहुदा लगते हैं यार ये, और पता है सोचते हैं कि हम कॉमेडी कर रहे हैं। ये कॉमेडी होती है? वैसे आपको भी ना किसी ने एक बात नहीं समझाई क्या? कि आप गुस्से में इतने बुरे लगते हैं, इतने बुरे लगते हैं, आपको पता नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। मैं तेरी शक्ल बिगाड़ देनी है तो अपने काम ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ओ वाह वाह वाह, आज आपकी नानी वालदा साहिबा भी आ गई हैं। ਪੈ ਗਿਆ ਈ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਬਿਨੇ ਵੇਦੀ ਭਈਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਅੰਮੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਮਾਂ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3500 ਰੁਪਈਆ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਅੰਮੀ। दर्द खाने च नहीं सीरियसली बताओ, क्यों वहां क्यों रखा उन्होंने? ਆਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। उन्होंने मरीज ही नहीं दिया। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ओए बड़े पैड़े हाल ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਮੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਲਾਨ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ। क्या? इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। अच्छा जी, ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अब हम लोगों ने ना एक फिल्म साइन कर ली है बस। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ करे। अच्छा जो फिल्म साइन की है वो है क्या, किस बारे में है? अच्छा वो ना एक सियासी ड्रामा है और हम लोगों ने ना एडवांस भी पकड़ लिया है। स्टोरी लाइन क्या है? अच्छा उसका हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने एडवांस ले लिया बस। वाह वाह। इनफ एंड इनफ। तो आप सब लोगों में से कौन कौन है उस फिल्म में? उसमें सब लोग हैं, मैं क्यों अकेली हूँ? तो आपके कैरेक्टर्स क्या है, फिल्म की स्टोरी क्या है? अभी नहीं हमने बतानी, लीक हो जाता सारा कुछ, अपने गुप्त रखा हुआ है सारा कुछ। फिल्म के पैसे कितने मिल रहे हैं आपको? क्यों बताऊं आपको, मसला क्या है? चुप करके बैठी क्या ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੀ ਔਖੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਲਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ये ढोलकी वाला भी है फिल्म में? ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ नहीं, मैं क्यों नहीं। आपको पता है बाजी ने एक आइटम तैयार की है। और कौन सी बाजी? गुलपरी ने इस तरह का आइटम तैयार किया आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी अभी। गुलपरी कौन है तुम में से? ये गुलपरी आपको नजर नहीं आ रही? हाँ नहीं गुलपरी। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪਈ ਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। तो क्यों चलाते हो पंखे, एसी शेसी? ਹਾਏ ਪੰਖੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਾਨ ਨਾ। अरे पीछे ये 15 मिनट पखा बंद रखा, गुलपरी ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ओए होए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਖੀਆਂ ਜੋ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿੱਲ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੁਛਾਣੇ। ਦਗਨਾ ਦਰਗਦਾ ਦਰਗਦਾ ਕੰਬਲਾਏ ਮੇਰਾ ਟਿੰਗ ਡਾਂਗੋ ਡਿੰਗ ਡਾਂਗੋ ਡਿੰਗ ਡਾਂਗੋ ਡਿੰਗ ਡਾਂਗੋ ਕੰਬਲਾਏ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। यार किस कदर बेहुदा, ना करो प्लीज, ना करो ये। अम्मा जी ने मना करें। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਿੱਲ ਆਈ ਸਾਇਆ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਸੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਜਾਣੀ ਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 1,32,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ।
1,32,000 आपका घर, बस ये कमरा है ना? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ तो करते रहे होगे जिस तरह के तुम चोर हो। ये चोर ये कौन सी चोरी कर ली हमने? चोर, आराम से बैठा करिए आप। इसको बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि चोर है ना, यकीनन करती होगी ये चोरी। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਏਸੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਮੀ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਕਢਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਘਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੜਦੀ ਆਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇਣ, ਕੁਕੜੀ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਇਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। चलिए अब तो हालात बदलने वाले हैं, आपको फिल्म मिल गई है। ਲਹਿਰਾਂ ਬੇਰਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ क्या तकड़े थी वनो, तकड़े थी वनो, होशियार थी वो, जरा एक्टिव थी वो। ਐਕਟਿਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ। ये कौन है? आपको पता कह नहीं कि इतना सा फिल्म बनावन किते आंदे पे हैं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਿਨੋਂ ਆਈਟਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये विलायत की अवधा रह गया ना। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਸੀ ਨਵਈਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, क्या नाम है? ਸਿਆਸੀ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ। ना ही काफी है, इंशाल्लाह दिखाए आस्कर घिन के आसी सारी फिल्म। आस्कर दे नेड़े तेड़े वैसे बल्कि घिन के आसू असा। आस्कर जेरे लोग सियासत च डरे डरे रहंदे ना, खोल के गाल नहीं कर सकते, उको आदन सियासी खुसर फुसर। मजाल है जो कहीं कोई गाल कीती होवे, मजाल है कहीं खोल के इतराज कीता होवे, मजाल है कोई घरों बाहर निकला होवे, थारे चुप न नांग सूंघ गए उन्हें को। जिथा बैठन बस हिक्का गाल करे सन, तरमीम नहीं थी नहीं पई, तरमीम नहीं थी नहीं पई। इहा गाल है, यही को आदन सियासी खुसर फुसर। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਖੁਸਰੇ ਨੇ। अच्छा ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। आपकी फिल्म किस ज़बान में है? उर्दू, पंजाबी, सराइकी? देखो डायरेक्टर मैं आ तां जी। ते ज़हरी गाल है, मैं अपनी बोली दे विच करे सां, लोकां को समझ आवे सी, समझावण दा तरीका होना चाहिदा है। अच्छा, यानी आप सराइकी फिल्म बना रही हैं? जी हाँ। अच्छा मैं जेड़ा भी डायलॉग दसे सां, मेरा असिस्टेंट उदों ते परफॉर्मेंस करके दसे सी, तो आपको आसानी नाल समझ आ सके। ठीक है, हुण तुहाडी चो सब तो पहले ये दसो जोशीला कौन है? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਸ਼ੀ ਬਗੈਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਸ਼ੀਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। हुण मुकाबले दे विच कौन उतरदा पए ये दसाओ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਸ਼ੀਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ। ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਸ਼ੀਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। लेकिन दूजा बंदा चाहिए साकू। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਨੀ, ਚਿੱਤੜ ਮੇਰੇ ਛੱਲੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਂਤਰੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा सा दूज ते घिंदे पे इकू। अच्छा हुण तुहाडा डायलॉग हो रहा हो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा हुण इधे आओ, हुण पहला डायलॉग है तेरा, तू नाल आई था। असां खरायत नी घिंदे वीर सिंह। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ? हाँ असां खरायत नी घिंदे वीर सिंह। क्यों? ਹਾਂ ਅਸ ਖਰੈਤ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਹਾਂ असां खरायत नी घिंदे वीर सिंह। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਖਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਘਿੰਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਖਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਵੀਰ ਬਸ਼ੀਰ। ਓਹੋ ਬੀ ਬਸ਼ੀਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਬੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। हुण तू गाल करे से असां ते को मरे सू, जरूर मरे सू। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੋ ਮਰੇ ਸੂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇ ਸੂ। ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰੇਸੂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਸੂ। ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰੇਸੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਸੂ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰੇਸੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਸੂ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰੇਸੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਸੂ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰੇਸੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਸੂ। हाँ लेकिन वो बंदूक भी सादी हो सी ते गोली भी सादी हो सी। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਗੀ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸੀ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸੀ। ਹਾਂ अच्छा वो गाना तुहाडे चो केरा करे सी। ਗਾਣਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਅ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਗਾਵਣਾ ਹੈ। देख हम अगर कोई सियासी गाना हो सी ते असां घिनसू, सियासत दे बगैर गाना कहना चल। नहीं तू फिकर ना कर, नहीं फिकर ना कर, ऐसा सियासी गाना गाता तू याद रखते हैं। लो फिर स्टार्ट ऑन कैमरा एक्शन। तरमीम कराता हूँ, तरमीम नहीं होती,
तरमीम नहीं होती तरमीम कराता हूँ तरमीम नहीं होती तरमीम नहीं होती ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं होती तरमीम नहीं होती तरमीम कराता हूँ तरमीम नहीं होती तरमीम नहीं होती तरमीम कराता हूँ तरमीम नहीं होती तरमीम नहीं होती ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮੁਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੋਚ ਦਿੱਤੀ ਮੋੜਾ ਨਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆ ਨੀ ਰਾਤ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰੂ ਕੀ ਨੇ 124 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰਮੀਮ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ वो और अटेम्प्ट करेंगे किसी और तरीके से करेंगे। ਮੋੜ ਕਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਣਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਅਖੀਰ ਇਹ ਨਾ ਪਕੜਾ ਝਗੜਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋ ਜੋਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ हाय अम्मी बहुत सियासत करने लग पई है ਹਾਏ इन्हें पिता नेल्सन मंडेले को कढ़ाया भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮੀ ਫੇਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। अगला ऑपरेशन ਇਹਦਾ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੇ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣ ਕੀ ਆਲਾ ਵਾ? ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਪਦੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ की तरफ बढ़ रही है वाह 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 वाह। ਲਓ ਜੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਖਾਬ ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਬਰਜ਼ੰਸਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਕਿਸ ਬਲੌਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਸੰਸਕੀ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਲਿਆ ਕਰ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। कौन? ਆਈ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੀ। सरबस ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਫਰਜ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ वर्जिंस्की। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। नहीं मैंने बताया ना कोशिश तो करेंगे वो फिर से करेंगे। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆਫਤਾਬ हाँ जी ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋਤੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਈ ਨਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚ ਸੱਟਦੀ हाँ जी ऐसा ही होगा। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਾ ਲੈਣ ਨਾਦਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਡੀ ਚੌਕ ਚ ਮੁਜਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी बिस्मिल्लाह जी सर मुख्तार मंडी वाला जी क्या हाल है जी, सर? सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा नाम सुना इनका मुख्तार पांडी वाला। मुख्तार ये हमारे पांडी जी हमारे मांडी वाला तो मम्मा जी वालेकुम सलाम मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं जी। जी लोकेशंस मैंने डिसाइड कर ली हैं। शाबाश। पीसी बूरबन मैं मर गई। ये खातून मेरे साथ जाएंगी। ਲੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਹੈ ओ नहीं नहीं ये अकेली जाएंगी। ਅਕੇਲੀ ਅਕੂਲੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲੀ ਐਡਾ ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹਾਂ ਵੇਖਾ ओहो अम्मा जी मुंह मांगे पैसे आपको दे रहे हैं, क्या हो गया? काम करना है फिल्म में उसमें। ਲਾਂਤੀਆ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ सर इस तरह नहीं हो सकता। वो अकेली को कैसे भेजें? आप गलत कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? अकेली तो हम इसको ना भेजें। मैं तो पाँव भी बांधने निकालूं अकेली। मैं तो कभी जिंदगी में सोचूं भी ना। मैं तो अपनी बहनों के अलावा कभी सफर कर ही नहीं ਓਏ ਵੇ सकती। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਵੇ ਇਸ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ? ਐਡਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ। ओए, तुम्हारी औकात है कि इस तरह मेरे साथ बात करो? ओए तुम शुक्र करो कि तुम्हें फिल्म मिली है, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। नहीं तू नकारा लड़कियां समझिए साड़िया है शर्म आनी चाहिए तुम्हें कुत्ते के उल्लू। तुम्हें तमीज नहीं। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂਡੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ शायर की मुराद उल्लू के पट्टे से है तो मैंने क्या कहा? तू पता नहीं की पट्टी और की क्या ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂਡੀਆਂ ਵਾਲਾ। एडवांस वापस करो, मैंने फिल्म नहीं करनी तुम्हारे साथ। एडवांस वापस करो। तू बाकी दी रकम दे। असि तेरे ना फिल्म ही नहीं करनी। बेगैरत आदमी, नंगे आदमियत, घटिया शख्स। तुम्हें तमीज ही है? ओए तेरा बेड़ा गर्क जाए। सर पैसे तो इनको देने पड़ेंगे ना। देखे ना हमने साइन किया है। मैंने इनके साथ प्रोजेक्ट ही नहीं करना तो पैसे कैसे देंगे हम?
सर करें ना करें लेकिन हमारा एग्रीमेंट है, पैसे तो देने पड़ेंगे। वाह भाई आप देख रहे हो, जलील कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਚ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਐਡੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐ ਵੀ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਚੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਾਂਡੀ ਮੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਂਡੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਅੰਮੀ ਫੇਰ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਈ कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज रिवायती करेक्शंस के साथ हम आगाज करेंगे। सबसे पहले आप हैरान होंगे, जो हमारे नोट होते हैं उनके ऊपर तहरीरें गलत है। और आपको पता है मैं हंस क्यों रहा हूं? जी ये जो ही शो शुरू होता है ना, तो आपकी हालत उस बच्चे की हो जाती है जिसे माँ टीका लगवाने जाती है ना, हाय हाय तो इंजेक्शन को देख के उसकी जो कैफियत होती है ना, जी ऐसा ही है। खास तौर पर पुन्नू की जो कैफियत होती है, और मुझे बड़ा मजा आता है देख के। अच्छा जी, ये जो करेंसी बिल्स के ऊपर, नोटों के ऊपर जो गलतियां हैं, इस हवाले से एक साहब ने अदालत से रुजू भी कर रखा है कि जनाब इससे हमारी साख को नुकसान पहुंचता है, हमारी करेंसी के साथ एक प्रेस्टीज है, फिर हमारी लैंग्वेज का मामला है, नेशनल लैंग्वेज का। तो इसको मेरा ख्याल है एक्सेप्टेंस भी मिल चुकी है कि हम इसके ऊपर गुफ्तो शनीद करते हैं, और स्टेट बैंक ने प्रॉमिस भी कर रखा है। चौर साहब उन्होंने कहा हम इस पे गौर करेंगे। जी, अल्लाह करे ये गौर रियल गौर हो, वो सिर्फ डंग टपाओ गौर ना हो, क्योंकि गलतियां बहरहाल हैं। हम लगे हाथों एक एक करके बताते हैं कि इसकी तस्हीह मतलूब है। गौर आप भी कर लें कि बैंक को बैंक लिखना गलत है, बैंक, शायद इसलिए कि लफ्ज तो बैंक ही है, जो अंग्रेजी में होता है ना, बैंक नहीं, आई एम गोइंग टू बैंक, आई एम गोइंग टू द बैंक, बैंक। लेकिन ये उर्दू जब हिज्जे करते हैं ना, तो वो जैसे बंक लिखते हैं ना, बंक नहीं है, बैंक ही है, लेकिन ये नहीं है इसके अंदर, तो वो खामखा की ये घुसेड़ी हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। वो तो है, लेकिन अगर ये नहीं आएगा तो प्रोनाउंसिएशन तो बंक हो जाएगी। नहीं, बैंक होगी, इसको बंक करेंगे, बैंक। चौर साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से? छोटी ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी बैंक कहा जा सकता है, बे नून काफ बैंक। तो बे नून काफ तो बंक बनता है, पढ़ा जा सकता है मगर बनता नहीं। चले बे ये नून काफ, वैसे मैं पूछना चाहता हूं, आपस की बात है कि इस पे एतराज क्या है, क्योंकि मैंने जैसे गुजारिश की है कि अंग्रेजी तलफ़ुज़ बैंक है, बैंक नहीं है, और बंक भी नहीं है। एनीवेज, ये एक एतराज है जो इसके ऊपर लगाया गया है। दूसरा, रुपया लिखना गलत है कि 1000 रुपया, रुपया इज सिंगुलर, रुपये, रुपए, रुपये नहीं, रुपए, 1000 रुपए लिखें, वो मुनासिब है। रे वाओ पे ये रुपए, बड़ी है रुपए। राणे तो मैं तेरा बैंक हो गया आया, बैंक रुपए कितने मेरे। हमारा एक क्लास फेलो होता था गवर्नमेंट कॉलेज में, वो कराची से था, लेकिन अमूमी तौर पे पढ़े लिखे लोग होते हैं कराची से, वो पढ़ा लिखा तो था ही गुजारे का, लेकिन बेचारा हर बात बन के करता था, वो अदाकारी के चक्कर में रहता था, हालांकि इंतहाई बैड एक्टर भी साबित हुआ वो। तो क्लास में लेट पहुंचा तो टीचर ने पूछा कि वेयर वर यू, तो कहता है आई वाज एट द बैंक, आई वाज एट द बैंक। प्रोफेसर कहता किथे, वो अंग्रेजी भूल गया, कहता किथे। बड़ा इबरतनाक तलफ़ुज़ था उस बेचारे का। तो आप कैसे कहते हैं बाबू? सीधा कहना चाहिए मैं बैंक जा रहा हूँ बस। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈਣ ਜਾਣੇ, ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਬੇਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਗਿਆ 10 ਵਾਲਾ। कल मुझे किसी ने भेजा, हमारे दोस्त हैं कनाडा से, आपने भी उनके यहाँ दावत उड़ाई हुई है, याद है? इकबाल मसीह साहब, नयागरा वाले। जी हाँ जी, इकबाल भाई। वो वक्तन फवक्तन मुझे इस तरह की चीज़ें मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। वो 2.5 लाख सिक्के लेकर एक बंदा बैंक पहुंच गया, 2.5 लाख सिक्के, और 2.5 लाख सिक्कों के लिए उसको 16 व्हील बैरो, रेडियां होती है ना ये मजदूरों वाली,
16 व्हील बैरोज चाहिए थी। कहता है मैंने इसके ऊपर कोई काफ़ी खर्चा किया, 2.5-3 था या कोई इससे ज़्यादा था, $2,500 का, इससे ज़्यादा ही था मेरा ख्याल। वो खर्चा करके तो साथ हेल्पर्स भी रखे हुए हैं और फिर कुदालें भी, ये जो शॉवल्स होते हैं वो भी साथ उसने रखे हुए। कहते हैं कि उसने, अच्छा बैंक नहीं, वो DMV गया था, जहाँ ये जो गाड़ियों का होता है ना, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपके लाइसेंस, ये अथॉरिटी होती है मोटर व्हीकल्स की। तो इसने इंतकाम लिया था उनसे कोई। अब वो इनकार नहीं कर सकते थे लीगली, वो ठीक कर रहा था। अब इसका इनकार करना इज अनलॉफुल। फिर है जी हामिले हाजा को ये अदा किया जाए। हामिले हाजा, द बेरर ऑफ दिस शुड बी पेड दिस मच। तो वो कहते हैं कि हामिले हाजा को इज नॉट इनफ, हामिले नोटे हाजा जी तब सेंस, हामिले नोटे हाजा को ये अदा किया जाए। वैसे मुझे अब एहसास हो रहा है कि भाईजान काफ़ी मखौलिया हैं जिन्होंने अदालत से रुजू किया। अच्छा जी, आगे है मुतालबा पर अदा करेगा। वो जो करेगा लिखा हुआ है ना, काफ रे ये और गाफ अलिफ गा, करेगा इकट्ठा लिखा हुआ है, इकट्ठा नहीं, करे बड़ी ये के साथ करे और गा अलहदा लिखना चाहिए। ये उस दौर में कागज और रोशनाई की जो बचत किया करते थे ना कातिब, तो वो लफ्ज यकजा कर देते थे, 2 लफ्ज इस तरह, तो वो गलत है, हमें नहीं करने की जरूरत। अच्छा, फिर ये कि जमानत से जारी हुआ, जमानत से जारी हुआ, तो वो कहते हैं जी जमानत पर जारी हुआ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਭਾਈ ਕੋ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੋਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, पुनू साहब पहला लफ्ज जी ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਏਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਏ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਤ ਹੈਗਾ। पहला लफ्ज है तलवार। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ 5-4 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ये फारसी में मौजूद नहीं है तलवार, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ। अरबी में भी मौजूद नहीं है। देखें, बहुत अच्छे। इसके लिए तेग, शमशीर, हाँ जी, हाँ जी। सैफ, समसाम, बल्कि एक लफ्ज है हुसाम, हुसाम जिसे हसाम कहते हैं। हुसाम इसका मतलब भी तलवार है, लेकिन तलवार गलत है। हाँ जी, तलवार की बजाय लफ्ज है तरवार। तार ते खान वाली हुंदी है। और नहीं, तर जैसे खून से तर हो जाती है वार करने के बाद तर। ये एक तार खाने वाली भी होती है। शाबाश, ठीक कह रही हैं आप। देखें ना, असला में वो कितना दिलचस्पी लेती है। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ तुम्हें पता ये तलवार नहीं है। वो सारे तलवारा तुरंत साइडा ते रख के, अच्छा जी ये क्या है, इसे शमशीर भी कहते। अखीर ते सारे बेचारे शिगिर्द होके उठते ने, ठीक है जी। वो जाके अपने बादशाह को कहते, खाचा तेनू नहीं पता है तलवार है, तलवार। खून के साथ जो तर हो जाती है ना, वो वार जिससे ये तर हो जाए, उसको तरवार कहते। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਕਵਾਰ। लेकिन फिर भी तरवार किस लैंग्वेज का? ये फारसी है। अच्छा जी, पुन्नू ਜੀ ਭੈਣ जहर, ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। एक तो इसको आप जहर ना कहा करें, ये जहर है, जहर। जहर मैं को जहर पिला वल। मेरा मूड बने। ये फारसी लफ्ज है और इसका मतलब जो आप पॉइजन करते हैं ना, कि ये वो जो बंदे को मार देती है चीज, ये वो नहीं है। येलो, ये येलो कलर का फूल होता है, उसको जर्द गुलाब जिस तरह होता है ना, जर्द फूल है, उसको जहर कहते हैं। जहर। अच्छा, तो सर पे इसको पॉइजन क्यों कहने लगे लोग? ये आपने देखा कि जब सांप काट लेता है बंदे को, तो 2 रीजंस होती हैं कि उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। एक दहशत, और दूसरा उसके अंदर से जो वो सब्सटेंस जाता है, ठीक है, वो जो पॉइजन है वो उसको पीला कर देती है। तो फारसी में कहते हैं जहर फाम। वाह,
जैसे जर्द फार्म होता है ना, स्याह फार्म, सफेद फार्म, तो इस तरह कहते हैं जहर फार्म, ये तो जहर जैसा हो गया, जहरीला नहीं जहर जैसा हो गया। तो इसीलिए तो इस पर फिर जर्द को लोग जहर कहने लगे कि ये पॉइजन है जिससे बंदा मर जाता है। सांप काटे तो वो जो अंदर जाता है वो जहर है। इसको विष भी कहते हैं, विष, विस जिसको हम पंजाबी में विष कहते हैं ना, हाय मेरे केल वजिया रात दी विस चढ़ी आई। इसको बिस भी कहते हैं, बिस, विस, और फिर इसको विष भी कहते हैं। सर स्नेक जैसे करता है, उसका उसकी जो आवाज होती है उसकी वजह से कहते हैं। मैं समझा कहने लगी सर स्नेक की आवाज निकाल के दिखाएं। उन्होंने को शुरू भी होई ना, बाकी सारा कुछ दसते हो, ये भी दसो। अच्छा जनाब, लफ्ज है पॉइजन। सर ये तो इंग्लिश का वर्ड है ना, तो इसका मतलब भी जाहिर ही हुआ। इसका मतलब जहर है? जी नहीं, एक्चुअली ये गलत उलाम है, इंग्लिश में भी गलत उलाम है। ये इल्लत और ये कबाहत सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, अंग्रेजी में भी हर जबान में होती है। पॉइजन बेसिकली बिगाड़ है पोषण का, और ये तरियाक के लिए इस्तेमाल होता है, एंटीडोट, जस्ट द अपोजिट। वो महलूल जिसे पिलाने से जहर का असर जायल हो जाए, उसको पोषण कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश में ये इस्तेमाल होता था, अब भी इस्तेमाल होता है। और हुआ ये कि जो पॉइजन हम समझते हैं ना, सांप, बिच्छू या किसी जहरीले कीड़े से काटने से जो वेनम अंदर जाती है, वो पॉइजन है। पॉइजन इनफैक्ट उसका अपोजिट। सर फिर जहर को क्या कहेंगे इंग्लिश में? वेनम बताया ना, वेनम कहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, क्रीम, क्रीम, CREAM, क्रीम, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, और इसका मतलब है तबाह करना। यानी कि जड़ियां कुड़ियां क्रीम लाउंदियां ने तबाह कर दियां ने। क्रीम इट ऑफ। और फिर कहना he was creamed in the first round, he was creamed in the first round, क्रीम हो गया, वो तबाह हो गया। और एक साहब मैं देख रहा था, बेचारे उछल उछल के मेरी जहालत का रोना रो रहे थे कि ऐसा जाहिल है, करीम को कह रहा है तबाह करना, करीम तो अल्लाह के नामों में से एक है। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करने लगा हूँ, करना मैं किसी और तरीके से चाहता था, लेकिन वो बेसूद है, बेकार है। एक बंदा जिसको पता ही नहीं बेचारे, उसको समझाने का ढंग है, कोई हुनर है जो बहरहाल सीखने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे नहीं आता वैसे। वो ये है कि वो अरबी लफ्ज है करीम, वो अल्लाह के पाक नामों में से एक नाम है, करम से है करीम, जी जी जी, एडजेक्टिव है उसका। और ये क्रीम है, ये क्रीम है, क्रीम, CREAM, क्रीम, ये अंग्रेजी है। और इसका मतलब ये है, इसके लिए आपको भैया कोई ढंग की अंग्रेजी डिक्शनरी, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मैरियम वेबस्टर देखिए, आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा, एग्जैक्टली यही मिलेगा जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, बर्बाद करना, ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने सालगिरह मनाओ। बर्बाद करना, यार बर्बाद करना का मतलब भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, कम से कम आपको तो आना चाहिए। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਭੰਡਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, आपको भी नहीं आता, ये कोई ਗੱਲ है। जरा चेक करे च कोई ਇਹ ਹੈ ਵੇ, बर्बाद ਇਹ ਹੈ ਵੇ थोड़ी बर्बाद तेरियां खैरां होण। बर्बाद भाग लगे रहे, नहीं आ रहा यार, एवं धक्के ना पाओ। मार के ऊपर पेश लगाएं। बुर्रबा है, वैसे ठीक है, ये इसके ऊपर पेस्ट लगा के थोड़ा सा तूल दो इसको। बुर्रबाद नहीं खैरां होण। ਉਹ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੀ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। बर्बाद कहते हैं किसी चीज को ऑन एयर करना। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ये फिक्रा 100% ठीक है, कोई जाहिल होगा जो नहीं मानेगा। बर मीन्स ऑन, बर लबे सड़क क्या है, बर लबे दरिया, और बाद एयर, हवा, हवा, एयर, बर्बाद यानी ऑन एयर। तो फिर सर बर्बाद तबाही कैसे बन गया? ये इसके पीछे मिथ्स होती हैं, कोई मिथ है, कोई वाकया है, कोई कहानी है, हमेशा हर चीज के पीछे होती है। वो कहते हैं कि एक डाकू था, यानी डाकिया। डाकिया पहले डाकू ही होता था ना, उसको प्यार से डाकू, वे डाकू, डाक वाले डाकू, डाकू उससे। तो फिर आपको ये भी पता है कि वो वाकया क्या हुआ कि वो डाकू मशहूर हो गया जी। तो इसी तरह किसी ने कहा होगा कि लो भाई ये सारे खत पकड़ो और हवा के दोष पे उड़ जाओ ताकि फौरन खुतूत तकसीम करो।
क्यों जी? यानी बर्बाद हो जाओ, कि हवा के घोड़े पे सवार हो जाओ। बहुत तेजी से पहुंचो। तो यानी बहुत तेजी से पहुंचो, सेम कहने का मतलब ये फिगरेटिवली वो ये कहा जा रहा है। तो किसी मकाम पे पहुंच के शदीद हवा की जद में आ गया होगा, उसके सारे खतूत, कागजात, सब कुछ उड़ गया होगा। अत्या जड़ा पागल जिहा दरख्त फड़ के खड़ा सी उस टाइम बर्बाद हो गया जी। उन्हें घर फोन किया कि भाई ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ बर्बाद की ਹੁੰਦਾ है। अच्छा जी, आज का शेर मुनीर नियाजी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं, जानते थे दोनों हम इसको निभा सकते नहीं। वाह। जानते थे दोनों हम इसको निभा सकते नहीं, उसने वादा कर लिया, मैंने भी वादा कर लिया। वाह वाह जी वाह। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अर्सा पहले हमने इरादा ज़ाहिर किया था, हमने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को खबरहार में ज़म करने, खबरहार में मर्ज करने और इसमें शामिल करने का बीड़ा उठाया था। मकसद सिर्फ ये है कि ये जो डायस्पोरा है इंडियन पाकिस्तानी, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में बैठा इस शो को एंजॉय करता है, उनकी पार्टिसिपेशन फ़िज़िकली यकीनी बनाने की एक सही है, एक कोशिश है। और ये तजुर्बा इंशाअल्लाह ताला इसलिए भी कामयाब होगा कि एक तो हमारा इरादा बहुत पुख्ता है, दूसरा टेक्नोलॉजी भी साथ दे रही है, और तीसरा ये कि ये वक्त का तकाजा है कि अब हम सिर्फ कमेंट्स के साथ और टेलीफोनिक राब्तों के साथ नहीं, हम बराह रास्त टेक्नोलॉजी ही की वजह से, अल्लाह के फजलो करम से हम इस पोजीशन में हैं कि अब दुनिया के किसी भी खित्ते को बराह रास्त जस्ट विद अ पुश ऑफ बटन एक नई दुनिया जो है ना उसका इजाफा करेंगे। और ये एक तरह से एक ऐसी इख्तरा है जिसको इंशाअल्लाह सब फॉलो करेंगे, क्योंकि हर एक का ब्यूरो है दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे। ये कम से कम वो जगह जहाँ जहाँ लोगों के ऑफिसेज हैं, उन्हें अपने शोज़ में वहाँ की लोकल ऑडियंस को फिज़िकली शामिल करना चाहिए। तो पेश खिदमत है इस सिलसिले की पहली कड़ी। ये बरतानिया की किस्मत में था पहला शो, और वो भी मैनचेस्टर। हमने शो का नाम मैनचेस्टर की मुनासबत से रखा है यस मैनचेस्टर। तो इसके बारे में कुछ 2-4 बातें वो होस्ट करेंगी, वो बताएंगी कि यस मैनचेस्टर इसको क्यों कहते हैं। ओवर टू मैनचेस्टर, ओवर टू समीना। बहुत शुक्रिया आफ्ताब इकबाल साहब, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और इस प्रोग्राम की वसातत से इसका नाम है यस मैनचेस्टर। मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहती हूँ। थोड़ा सा जो मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी या एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो ये नाम है इस प्रोग्राम का, इस सेगमेंट का यस मैनचेस्टर, इसकी वजह क्या है। तो इस हवाले से हमारी बात हुई आफ्ताब इकबाल साहब से, उनकी टीम से, और जो हमारी टीम है मैनचेस्टर में उनसे भी। एक बड़ा ही फेमस, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम यस मिनिस्टर, जो आपको याद होगा, और ना सिर्फ ये बल्कि यस प्राइम मिनिस्टर एक उससे भी ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी सिमिलैरिटी की बुनियाद पर और उस वसातत से हमने इस सेगमेंट का नाम यस मैनचेस्टर रखा है। मेरे इस सेगमेंट में मेरी टीम मौजूद है। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। मेरे प्रोग्राम के पहले गेस्ट जो आपको मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम में नजर आएंगे एज एक्सपर्ट, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं। इनको वेलकम भी कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने ज्वाइन किया हमें। इनके साथ जो दूसरे मेहमान आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इनका नाम है जी पापा खान, और ये भी आपको मेरी टीम में नजर आएंगे और डिफरेंट प्रोग्राम्स में नजर आएंगे। आपको भी वेलकम जी। इनके साथ मौजूद है जी तालब कियानी उर्फ राजा कोठारी, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आज के सेगमेंट में एक और हमारे मेहमान हैं जिनका तारुफ या इंट्रोडक्शन हम कराएंगे। उनका बेसिकली काम यह है कि वो हमारे इस शो को रन भी करते हैं, और उसके अलावा जितनी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। मैब्स अहमद मौजूद है, उनको मैं वेलकम करूंगी। थैंक यू जी। अच्छा जी, ये जो आपके पापा जी हैं, पापा जी साउंड्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। इनके बारे में ज़रा बताइए, क्या हैं ये और क्या करते हैं? जी, ये हमारे यहाँ के बड़े ज़बरदस्त सियासी कैरेक्टर हैं और फोक विजडम की अलामत है। फोक विजडम यानी एक अवामी दानिश्वर हैं। इस तरह के कैरेक्टर्स शकील साहब हमारे यहाँ भी बेशुमार हैं। एग्जैक्टली। जिस तरह हमारे नागी साहब हैं। बिल्कुल। अब नागी साहब भी ही नेवर वेंट टू एनी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, लेकिन चीज़ों की समझ बूझ मौजूद है। सर हमारा चाचा बूटा, चाचा बूटा ऑफ कोर्स, चाचा बूटा भी एक है, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द चूंकि
वर्गलैटी का हिसार इस कदर खौफनाक है कि हम उसका तस्करा शुरफा की महफिल में करना पसंद नहीं करते। कुछ सानू भी इजाजत है गल करन दी या ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿਟਕਾ ਪੜਨ ਆਏ ਹਾਂ। वाओ। ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂ ਭਾਪੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। अच्छा जी। ਜੀ ਸ਼ਮੀਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। जी फरमाइए। ਮੈਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਐਲੇ ਗੈਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ओहो क्यों क्यों टुर जाएंगे आप, क्या हो गया? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟੁੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਸੀ। क्या कहने पापा जी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁੱਚੇ ਹੋ गए। तौबा पित्तल ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। अरे ना परेशान हो, कोई नहीं, आप अपनी बात करें, ये अगर करते हैं तो इन्हें भी करने दें, आप तुर्की बतुर्की जवाब दीजिएगा। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? यार अभी नए नए आए हैं ना, वो उनका कहना है कि मैं थोड़ा सा सेटल हो लूं, ग्रूव में आ ले शो, फिर आप जो मर्जी कीजिएगा, फिर वो आपको जवाब भी देंगे। नहीं तो की गल है इस वेले थथे ने हो। नहीं यार वो नहीं पसंद करते ना यार। अच्छा इत्तेफाक देखो कि पापा जी एक शो करते थे और इनका कैमरामैन था हमारा अदनान। तदे मैं कहना सी थोड़ा थोड़ा ना यैटी तरह लगता है। यार अदनान वैसे बहुत प्यारा, बड़ा स्वीट आदमी है और पढ़ा लिखा डीओपी है। ले पापा जी अब वो खामोश रहेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। हम पर तो एतराज नहीं ना आपको, आप बात कर सकते हैं। शकील साहब बैठे हैं, उनसे बात करें, डॉक्टर रूबा बैठी हैं, बात करें। ये पूरा हॉल है, अगर आप चाहें तो ऑडियंस में से किसी के साथ बात कर सकते हैं। नहीं सर फिलहाल मैं इसलिए तैयार नहीं आगा। तो किस लिए तैयार हो तुसी पापा जी, आए की करो नो? सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा नहीं नहीं करो करो करो, गुस्से च नहीं आना, गल करो जरूर करो। मैं सर सिर्फ डिस्कस करना चाहना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला की रोला पे है। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मसला क्या है, क्लियरली बताएं, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के बारे में कुछ पूछना है? वही गल है जी, और को मैं दाखिला लेना है। जी शकील साहब से पूछते हैं भाईजान, क्या सूरत हाल है? इमरान खान के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए? जो फाइनल लिस्ट है वो अगले महीने के शुरू में पब्लिश होगी। अच्छा तो ये दुरुस्त है कि 36 कैंडिडेट्स हैं? 30 के करीब हैं अभी तक। अच्छा और रन में है बाकायदा? यस। वाह 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 वाह। और पापा जी आपको पता है ना कि ये सिलसिला कब से चल रहा है? क्या जी? ये कब से चांसलर वाला इलेक्शन जो है ना, ये एक ट्रेडिशन है जो 1224 से चल रही है। 800 साल हो गए। मैं तो हैरान हाँ, पाकिस्तानी रो रहे ने कि 77 साल तू साडा सिस्टम तबाह करके रख छड़े इमरान खान ने। इतने 800 साल वाला सिस्टम तबाह कर देने उन्हें आके। इसका क्या मतलब है पापा जी? देखो ना जी, 800 साल तू ऑक्सफोर्ड दे इलेक्शन हो रहे ने, कोई फॉरेनर इलेक्ट नहीं होया। वैसे शकील साहब कहे तो ठीक रहे, आज तक कभी कोई फॉरेनर आया नहीं है। जी ये बात सही है। रन में शायद आया हो, इलेक्ट नहीं हुआ। इलेक्ट नहीं हुआ। और ये एक ही हल्ले में इलेक्शन नहीं हो जाना, पहले 5 इलेक्ट होंगे और 17th ऑफ नवंबर को हतमी नतीजा आएगा कि हु इज द न्यू चांसलर। सर उस दिन भी वोटिंग होगी? अब सेम वोटर्स फिर से वोट करेंगे। दैट्स राइट। ये देखो ना, ये बड़ा मुश्किल और पेचीदा मरहला है कि वही वोटर्स दोबारा, लेकिन आसानी शायद इसलिए होगी है कि पहली दफा इस 800 साल तारीख में ऑनलाइन वोटिंग होगी। वोटिंग की सहूलत जो है ना, दैट मेड इट वेरी इजी। और टर्नआउट भी हाई होगा। तो ऑब्वियसली बहुत हाई होगा। ओ पापा जी ऐसे नहीं तो ऐसी परेशान आ। किस बात पे परेशान है? क्या परेशानी की वजह क्या है? ओने जेल में बैठा बैठा इलेक्ट हो जाना है, ऐसे मुसीबत पे आ जानी है। मुसीबत क्या पड़ जानी, क्या मसला क्या होगा? ਉਹ ਸਭ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਰਨਰ ਨੂੰ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਨਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੁਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਐਚਐਸਐਮ चुला ले। पापा आप खोल के बताएं, आपका आखिर मसला क्या है? हाँ जी मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या मसला है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। नहीं ये तो ठीक है, मशवरा तो आपका, लेकिन आपको लग रहा है बड़े पर्सनल से हैं। डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम क्या है इनका? जी देखिए, ये एक माइंड सेट है और मैं इनके साथ रहता हूँ एक अरसे से, और पता नहीं बोझ इमरान इनके अंदर कहाँ से आ गया और उस बोझ में ये पता नहीं कहाँ तक जा सकते हैं, तो इनको अपना काम करने दें। अच्छा जी, क्यानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत देर से खामोश बैठे हैं। क्यानी साहब कुछ आप भी बताएं इस हवाले से, अपनी भी ओपिनियन दें, कोई राय दें। देखिए समीना जी, मैं वैसे तो न्यूट्रल हूँ। मेरे लिए प्राइड की बात है कि कोई पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड में इलेक्शन लड़े। वाह जी वाह, बात तो है ना करने की। यार राजा सीधी तरह कह है कि मैं तो पीटीआई ज्वाइन कर रही है। ओ यार ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਰੋਬ ਨਾ ਝਾੜ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। पापा जी मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ।
ہوں میرے لانا ناراض ہو جانا پلیز. میں ناراض نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دیں. بھلے سے آپ جتنے مرضی عمران مخالف ہوں, یہ آپ کا حق ہے, آپ اوپینین رکھیں. ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ پرو عمران نہیں ہیں اور بہت سے لوگ پرو گورنمنٹ نہیں ہیں. اسی طرح ہی سارا سلسلہ چلتا ہے, لیکن دوسرے کو بھی بولنے دیا کریں. وہ شریف آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا, آپ نے اس کی بات ہی نہیں سنی. اور سر میں بڑے تکے نہیں ہو جے نیوٹرل, ادھر گل اور کر دین, ادھر جا کے اور کر دین. نہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان دے کاغذ ریجیکٹ ہونے چاہیے, بس دیٹس اٹ. کیوں ریجیکٹ ہونے چاہیے, کیوں, وجہ کیا ہے؟ سارے اس لیے وہ برطانوی ہے ہی نہیں, تے برطانیہ دا حق ہے. یار آپ کو بتایا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے. اگر آج تک الیکشن کسی نے نہیں لڑا نان برٹش نے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑ نہیں سکتے. لو جی, سانو نہیں سمجھ آ رہی اس گل دی. او پاپا جی, الیکشن لڑنے نہ لڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. او سر پڑتا ہے نا, پڑتا ہے فرق. مثلا مجھے بتائیں, میں کنونس ہونا چاہتا ہوں آپ سے, اور میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا فرق پڑتا ہے. پہلے ہی نمبر ودے جا رہے ہیں, کھوٹیاں جوانیاں ہوندیاں چلی جا رہی ہیں, جیب وچ بیٹھ کے موجہ پہ کردا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, الیکشن جیت جائے گا تو کیا ہوگا؟ ساڈے دوست پہلے ڈیمورلائز ہوئے. کیسے ڈیمورلائز ہوئے ہیں؟ وہ سارے نوے سال دے بندے یوریے بنتے جا رہے. کیا مطلب؟ نہیں, اس طرح کی بات نہ کریں. لوگ آپ کو پٹواری کہیں گے, آپ مائنڈ نہیں کریں گے. الحمدللہ میں پٹواری ہے ہی نا. تو آپ کیا ہیں؟ سر میں پٹواری ہاں, پٹواری نا. چلو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ پٹوار دیاں ہمدردیاں پھر کس دے ساتھ ہوتی ہیں؟ اچھا واہ. اور پاپا جی کیا مصیبت ڈالی ہے آپ نے, عمران کو الیکشن جیتنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. لو انہاں دی کسر ہے کسی افلاطون صاحب دی. پاپا جی کسی کو تو معاف کر دیں, آج کیا کھا کے آئے آپ گھر سے؟ آفتاب صاحب. ہاں جی. اے پھر آکسفورڈ دا الیکشن ہر صورت ہوندہ نظر آ رہا ہے. ہاں جی, ہوندہ نظر آ رہا ہے, اور خان جتدا نظر آ رہا ہے. فارم 47 تو ہوئے گا نا پھر. ہاں جی ہوئے گا. بس پھر جن چٹیا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ فارم 47 کے ساتھ ہرایا جا سکتا ہے عمران خان کو. اچھا جی, کچھ یہ بتائیں کہ آپ کے عزائم کیا ہیں محبوب صاحب؟ اچھا, اتفاق سے ان 4 حضرات میں 2 محبوب ہیں. ایک محبوب میبز ہیں, اور وہ انہی کی وجہ سے اپنے آپ کو میبز کہتے ہیں کیونکہ پاپا جی کا نام بھی محبوب ہے. ہاں جی میبز بتائیے کہ کیا پلان ہے, آئٹنری کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ سمینا آئٹنری یہ ہے کہ انشاءاللہ on the 2nd of November we are hoping that Aftab bhai and his team will land in the UK. اچھا, میں تھوڑی سی مداخلت کروں گا سمینا, with your permission. جی جی پلیز. گزارش کیجئے دوستوں سے کہ اگر اردو سے گزارا ہو سکتا ہے, گزارے کی بھی اردو ہے تو پلیز, تاکہ سمجھنے والوں کو سہولت رہے. صحیح ہے. تو آپ میبز پلیز اردو میں بات کریں. آہو ایڈا تو ڈاکٹر جانسن. ڈاکٹر جانسن پتہ ہے نا, جس نے ڈکشنری کمپائل کی تھی پہلی. سمینا پلیز try not to poke his nose. پاپا جی پلیز, اس وقت ہم ذرا سیریس بات کر رہے ہیں. ہماری میٹنگ گریٹس بھی ہوں گی تھرو آؤٹ دا UK. بٹ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ اٹس این اپرچونٹی, ایک اپرچونٹی ہم دے رہے ہیں لوکل جو اوورسیز ہیں ان کو ٹو ایکچولی سی دا ریئل آفتاب, ٹو سی دا ریئل آفتاب اقبال. سو دیئر فور ہماری لوکل جو میٹنگ گریٹس بھی ہوں گی وہ بھی ہوں گی. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ آفتاب بھائی از این امبیسڈر آف ہاسپس از ویل, چیریٹی بیسڈ ان دا UK. تو ہم ان کے ساتھ بھی کام کریں گے. ہم ویریس امپلائیز کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے کوئی کام کریں گے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ انشاءاللہ. یہ جو ایونٹ ہوگے یہ دس ول بی تھیٹر اسٹائل. وہ ہم نہیں جائیں گے. آفتاب بھائی نے ایک چیز تو ڈیفینیٹلی ہمیں بتا دی ہے کہ وہ بینکوٹنگ سویٹس از ناٹ آن آور کارڈس. ہمارا جو کام ہوگا وہ ہوگا ان تھیٹر اسٹائلس. آڈیٹوریم. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آفتاب بھائی, آڈیٹوریمس ہوں گے. اور انشاءاللہ اس آفٹر کیئر سینٹر بھی جائیں گے جہاں چھوٹے بچوں کا وہ آنکالوجی سے متعلق جو ہے کینسر آفٹر کیئر سینٹر ہے الحمدللہ, جس کا میں ایمبیسڈر بھی ہوں. جی بالکل, لاسٹ ٹائم ہی آپ نے وزٹ کیا تھا اور بہت اچھا ایک پروڈکٹیو وزٹ ہوا تھا ماشاءاللہ. اس دفعہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی, بلکہ بچوں کو گٹار پہ گانا بھی سناؤں گا میں. آپ کو یاد ہے نا وہاں پہ گٹار رکھی ہوئی تھی انہوں نے؟ جی, دیٹ وڈ بی ویری ایکسائٹنگ انشاءاللہ. اس پروگرام میں نا وی آر برنگنگ دا بیسٹ آف دا بیسٹ, اور دس از این اپرچونٹی فار اسپانسرز ٹو بی انوالوڈ. یار تو پنجابی سے کیوں نہیں گال کرتا, پنجابی سے گال کر. میبز بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں انگریزی میں, وہاں کے اب عرصہ دراز سے وہیں پہ رہ رہے ہیں, ایک ہی زبان بول رہے ہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ ساتھ مکس رکھیں, ساتھ اردو پنجابی کا
वो करते रहें। भाईजान मैं कोशिश तो कर रहे हैं, रहंदी शंदी कसर है, पापे और ही कर रहे हैं आज। जी पापा जी आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहें, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ओके जी, अल्लाह शिफा देवे। सुनिए ये पहली दफा हो रही है यूके में, इन द हिस्ट्री ऑफ द यूके, कि आफ्ताब भाई अपनी पूरी टीम के साथ दे आर गोना लैंड इन द यूके। तो जो स्पॉन्सर्स है हमारे बाहर, उन बिजनेसेस ने ऑलरेडी हमसे रब्ता किया हुआ है, एंड इंशाल्लाह ताला दिस विल बी अ थोरो स्पॉन्सर्ड शो। मैब्स भाई देख लो, चुड़ेला का देवता हुंदा। डॉक्टर साहब आप मुसलसल चुप बैठे हैं, आप भी कुछ हिस्सा डालिए, कुछ बताइए। जी डेफिनेटली इस सेगमेंट का एक मकसद ये भी है कि जो हमारा ओवरसीज़ के पास जो टैलेंट है उसको भी हमने दुनिया तक पहुंचाना है। तो जो यहाँ पे शोरा हैं, जो हमारे अदीब हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, इंशाल्लाह ताला उनको हम इंकरेज करेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए उनका टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में जाए। अच्छा आफ्ताब साहब, आप इस हवाले से कोई खास बात करना चाहेंगे? अच्छा जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता जाऊँ, इस वक्त हम जो वेलकम डील के तहत वहाँ के लोकल एडवर्टाइजर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो उसके लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर रब्ता करें, हमारी मार्केटिंग टीम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेगी। और अगर मजीद डिटेल्स आपने जाननी है तो मैब्स इज देयर, ऑफ कोर्स डॉक्टर बासित इज देयर, समीना इज देयर, एंड पापा इज देयर। ऑफ कोर्स पापा इज ऑलवेज देयर। बहुत शुक्रिया जी, अभी सबसे खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक। कोतिनोज रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद नामी ग्रामी सहाफियों ने। आइए उनके साथ गपशप करते हैं। नामी ग्रामी की हुंदा, ना नहीं लड़े होंदे साडे TRY हैं, हमें नाम भूल गया था आपका। कितने साल गुजर गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, आपकी ज़ियारत नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सेम फिक्रे मैं कहने सी, मैं तो खाली हो गया था। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था लेकिन आपने नहीं बुलाया। बहरहाल इंज इंट्रो होंदा जे साडे नाल TRY है, साडे नाल मैडम तुसी कौन हो? कैसे आफ्ताब साहब, आप ठीक हैं? ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜਕੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। आप कौन है बाय द वे? ਮੈਂ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਤੰਨਿਆ ਸਾਫੀ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੰਨਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। यार ये किस कदर अहमकाना लुक दे रहा है, कैसा अजीबो गरीब कैरेक्टर है, और साफी बन के आए हुए। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਹਾਫੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। नाम क्या है आपका यार? सलीम संगदिल। सलीम संगदिल। सलीम क्या? संगदिल यार, संगदिल। यार उसे बताने दो ना, तुम उसके इंटरप्रेटर हो। चलो पूछ लो। मैं थथा मां या मैं गूंगा मां, मेरी आवाज पहुंचती नहीं तक। नहीं, संगदिल आपका अपना नाम है या तखल्लुस है? तखल्लस है, तखल्लस है। उसको बताने दो ना यार। वो साले ਨੂੰ तखल्लस ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। मैं बारा काफी परेशान सी, मैं कहा आफ्ताब आप चुप करेंगे जरा, आपसे बात नहीं की, मुझे पहले उनकी उस संगदिल की वजह तस्मिया तो जानने दें। ਓਏ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੰਗਦਿਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੱਕ ਸੰਗਦਿਲ ਤੇੜਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਤਸਮੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਹਟੀ। ਇਹ ਤਸਮੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਬੂਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਸਮੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੇ। एक्सक्यूज मी जी, मुझे प्लीज इनके साथ नहीं बैठना। क्या मसला क्या है? एक जाहिल मुतलक है जिसे अपने नाम का मतलब तक नहीं आता और दूसरे को खुरक पड़ी हुई है लगातार। और वीरे की हाल चाल तू सुना? आप लोग कहाँ के सहाफी हैं? मैं लाहौर दा। और ये कहाँ के हैं? मैं फैसलाबाद दा। तो आप पहले मंजर आम पे क्यों नहीं आए? आप कहाँ थे? ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। किसने? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਤਰਮੀਮ ਤੇ। ये कब की बात है? ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ। यार ऐसे ड्रामे ना करो, पिछले 77 साल से तुम कैद में हो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। फिलोसॉफिकल बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, तुम्हें अपने नाम का पता नहीं है। ਸੰਗਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕੀਉ ਕਲਬ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਸਖਤ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। तो पहले मुंह में तुमने थर्मामीटर लिया हुआ था। देखे मैडम, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। मैनू कह रहा ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਹੈ यार मुंह मेरे वाल कीता, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? बेटा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਫੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ बल्कि ऑल द वर्ल्ड। ऐसा स्याह बख्त है बेचारा, जिस शो को हाथ लगाता है वो सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, और बकवास करने पे आता है तो बाज नहीं आता। अच्छा खैर, दूसरों का तो बेड़ा गर्क आप करते ही हैं शो करके। आपके अपने YouTube चैनल के कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं इतने अरसे में, बल्कि इतने सालों में? 2,500 हज़ार हो गया। और शर्म से डूब मरो, 10,000 तो मेरी काम वाली के हैं। वो तो काम वाली है ना, जे मैं काम वाली हुंदा मेरे तो 20,000 होने सी। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं TRY, बिस्मिल्लाह हुक्म भाजी। तुम्हारी हर चीज पे फिटकार है।
तुम्हारी शक्ल पे भी, तुम्हारे नाम पर भी, तुम्हारे काम पर भी और तुम्हारे लिबास पर भी। ओहो की हो गया, कल ही नाराज होने डया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ कहता, मेरे तो जहन से भी माफी तलाफी होगी, बुला लिया फिर। पुत्र मैं यही समझता था कि माफी तलाफी होगी है, लेकिन नहीं, तुम हो वो पूछ जो वाकई टेढ़ी रहती है। कब से कर रहे हो तुम ये? कहावत नहीं, खुरक। मैडम आजकल ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ? अपनी जबान बंद रखो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਕ ਪਈ? आफ्ताब साहब, आप इसको मना करें, मुझसे डायरेक्ट बात क्यों कर रहा है? नहीं चलो भाई पूछ के दसो किहड़े चैनल ते कोई जॉब मिल नहीं यार, आप जगह चेंज कर लें, आप जगह चेंज कर लें, आप इधर आ जाएं, ये सेंटर में आ जाएं। आ जाए। नहीं नहीं, बैठे रहो, यही ठीक है। जल्दी, लेकिन कम से कम मुझे खारिज तो नहीं ना? खारिश जहालत से बेहतर है। ये बात हौली हौली मोह हो रहा है, हौली हौली। इनसे सवाल करते हैं। मैं खातून की बात कर रहा हूँ, खातून से पूछ रहा है, ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ आजकल इतने मसरूफ किधर हैं? जी मसरूफ तो बहुत हैं, बहुत मसरूफ हैं वो। किस चीज में? ये मुझे नहीं पता। नहीं मसरूफ बहुत ने, तो ये मुझे नहीं पता। देखें ये कोई सहाफत वाली ये लैंग्वेज ही नहीं, आप उनको बताएं। उन्होंने पूछा है, मुझसे पूछो तो मैं बताता हूँ मसरूफ क्यों है, मैं बता देना था। मैंने किसी चीज़ का नहीं पता होता, मैं फिर भी बोलता रहना। वो जैसे वास्को डे गामे ने क्या सी, झूठ इतना बोलो, इतना बोलो। गामे ने क्या सी? ਓਏ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਕੌਣ ਸੀ? वास्को ड गामा पहलवान। ਉਹ ਮਰੇ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਏ। ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ, ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਾਮੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਟਿਪਾ। वाह वाह। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 5000 ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ, ਜਾਂਗੀਏ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੜਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਬੇਹਯਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਡਾ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ। ਆਹੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਿਤੇ ਰੋਈ ਰੋਈ ਲੱਭਦੀ ਆ। यार गुरबत सी ना, जांगिया इको सी, बल लड़ लड़ के घुल घुल के। अच्छा, इसको जांगिया नहीं कहते, ये जांगिया वाली कुश्ती नहीं करते थे। लंगोटा यार, लंगोटा भी नहीं कहते। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਐਫਸੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। क्या कह? कैसे झोला है, इन्हें पता ही नहीं, और बातें देखो कैसी कर रहे हैं। ਉਹ ਪੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। अब पल्ली करीब करीब पहुंच रहा है। रुमाली। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਦਸਤ ਬੋਸੀ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? भाई बैठो। ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਦਾਦ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਚ। अच्छा ये बताएं जी यार, आप अपने कामों में लगे रहे, मैं खातून से पूछ रहा हूँ, इमरान खान की रिहाई का कितने % इम्कान है? 0, बिग फैट 0। किस बुनियाद पर आप कह रही हैं? ये मुझे नहीं पता, बस 0। ਮੈਡਮ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਫਿਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਫਿਕਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਆਹੋ। मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਗਚੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸੰਗਚੂਰ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗ ਦੇ ਲਾਂ, ਚੂਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਮੈਡਮ ਸੰਗਚੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਲਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। यार एक गल मैं करा, शायद दिनों बाद आया। जी जी, बिस्मिल्लाह नागी साहब, बिस्मिल्लाह। ਇਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? 100 दिन बाद आया, यानी 100 दिन बाद आया हूँ, बड़े दिनों बाद आया हूँ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾਵੇਂ ਮੌਲਾ। जी बाबा जी 100 दिन बाद। ਕੋ ਜੀ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। बस ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਗੱਦੇ। गद्दे? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਜੇ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ नागी साहब की आंदे जो मैं तो आना जी, खां तो बगैर ये सिस्टम ठीक कोई नहीं होना, भावे उड़ के दिखा दे। कैसी रॉटन सोच है तुम्हारी, जैसे कि तुम खुद हो ना पुराने जमाने के, वैसी सोच रख के बैठे हो यहाँ पर। अब बीबी माया दा पिया जिन्ना हरकतां ते आए ना, आ तुहाडे हुक्मरान सीधी तरह जावन ते ओदे नाल सुलह कर लवन। ड्याला किड्डी को दूर है। तुम जैसों के ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे बाबा जी, याद रखना। मैं भी याद रखसा ते तुम ही याद रखी बीबी, गल विच 2 महीनों दी है। आहा, वाह नागी साहब, कमाल है। नहीं तो आप एग्री करें कि वाह नागी साहब कमाल है। नहीं, मैं एग्री नहीं कर रहा, मैं उनके स्टाइल की दाद दे रहा हूँ। नहीं, मैंने समझा शायद आप एग्री कर रहे हैं उनकी बात के साथ। क्यों, ये गल एग्री करने वाली नहीं हैगी। नहीं, मैं कोई ऐसा खास डिसएग्री भी नहीं कर रहा। 2 नहीं तो
2.5 महीने लग जाएंगे। ख्वाब देखने पर पाबंदी तो नहीं है ना आफ्ताब साहब? वाह वाह वाह, क्या बात की आपने, माशाल्लाह। तुम खुरक पर ध्यान दो और चापलूसी कम करो। यार एक बारी कफ टंग के माली ले, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਾੜ 'ਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਕ ਲੈ। नॉर्मल ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट शो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।